Now we are starting this session. We have some problem with the previous session with the net connectivity. So we try to start from where we left in the previous class. So we have discussed about the two different protocols which are used in serial communication, that is SPI and I2C. And now we move to the next protocol which is used in communication, and that is UART communication. So what is a thing which is distinguish it from the other two protocols which we have discussed previously is that the way UARTs communicate. Here you see that two separate UARTs are used. One acts as a transmitter and other one acts as a receiver. The transmitting UART sends the data and it is received at the receiving end by the other UART. Now, if you see this diagram, you can easily identify that it has two pins, transmission and reception. So at the transmitting end, that is UART number 1 is transmitting by its transmitting pin, and the data is received at the RX pin, that is receive pin, by the UART2. The data which is coming at the UARTs are in parallel form. It is coming from a CPU or a microcontroller or a microprocessor or maybe a memory, and the data is in parallel form. So this data should have to be first converted into the serial form before transmitting it to the receiving UART. So the first task that UART does is convert the parallel data into the serial data form and then transmit it to the receiving part, other receiving UARTs. So again, like I2C UARTs also have the two pins which is used for the data transmission, that is TX and RX. In the case of I2C, we have seen that there is two lines, SDA and SLCs, and these are two pins are used for the transmission. So as we know that UART communication is a asynchronous way of communication, means no clock signal is applied here, no clock signal is needed here. So how you synchronize the data transmission from one UART to the, or you can say the transmitting UART to the receiving UART, as there is no clock signal to synchronize it. So the process of signal synchronization is achieved by UART by adding 3 more bits to the data bits which it gets from the microcontroller or from the CPU, and that bits are known as start bit, stop bit, and a parity bit. So these bits are sampled, are added at the transmitting end by the UARTs, and then it sends to the receiving UART. So the initialization of process, the starting of process deals with sending a start bit. Start bit is sent to initiate the operation of transmission between the two UARTs. So the start bit sends, and if the receiver recognize this, then it seems to be that the data transmission is now started. After the start bit, whatever data is arrived at the receiving end is that data which is the original data which is
received by the transmitting UART from the CPU or the from the microcontrollers. तो UART की बात अगर करें हम लोग तो UART I2C के जैसा ही है. अगर पिन वाइज बात करें तो यहाँ पे भी 2 पिन ही यूज होती है, 2 लाइन्स ही यूज होती है, जिनको ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए कहा TX और RX पिन. जो अंतर है I2C और UART में, अगर उसको देखने का प्रयास करें तो वो अंतर हमको दिखता है कि वो क्लॉक सिग्नल का एब्सेंस है. जहां पे हम लोगों ने देखा कि SPI हो या I2C हो, इन दोनों में ही क्लॉक की नेसेसिटी थी सिंक्रोनाइज करने के लिए. चूंकि UART असिंक्रोनसली डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसलिए इसको कोई क्लॉक सिग्नल नहीं चाहिए. तो क्लॉक सिग्नल का जो रोल था वो रोल UART में कौन करेगा? UART इसके लिए प्रोविजन करता है और it adds 2 bits, that is a start bit, stop bit, and one more bit, that is parity bit, which the detail of parity which we will discuss in the next slides. But the role of a start bit is to initiate the operation. तो ये जो start bit है ये initialize करने के लिए काम में आती है, ये start करती है operation को. क्या start करती है? Transmission of data from the transmitting side to the receiving side. अब ये जो डेटा ट्रांसमिशन है, ये डेटा ट्रांसमिशन ट्रांसमिटिंग UART का इनिशियलाइज करने के लिए स्टार्ट बिट से होगा. जब स्टार्ट बिट रिसीविंग एंड पे रिसीव कर ली जाएगी तो रिसीविंग UART उसके बाद जितनी भी बिट्स उसके पास आएंगी वो बिट्स उसके डेटा पैकेट्स होंगी. तो वंस द डेटा इज रिसीव्ड एट द रिसीविंग UART, तो अब अगला काम रिसीविंग UART का क्या होगा? वो जो भी डेटा आया है उस डेटा को अगेन उसको सीरियल से पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर रिसीविंग एंड पे जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको सेंड करेगा. एक बात का जो ध्यान रखना है यहाँ पे, वो ये ध्यान रखना है कि when you are using UARTs for communication, then you have to use a specific frequency for both the UARTs, and that is known as baud rate. So means what I am trying to say here is that both the UARTs are configured at the same baud rate. If the maximum deviation allowable here is up to 10%. So ideally the baud rate should be same for both the UARTs, either at the transmitting end and or at the receiving end. So the baud rate should be same. Now, the baud rates are why exactly the same when we consider the UARTs, because if you're transmitting a bit asynchronously, then the data must be received at the same pace or at the same speed at the receiving end. If both the UARTs does not match in their baud rate and their maximum deviation is more than 10%, then there may be a chance of data loss, frame loss, or other problems with the data. So to eliminate all these problems, UART should have the same baud rate while transmitting and receiving the data. ऑपरेशन शुरू करने के पहले UART को बोथ UARTs को सेम baud rate के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया जाता है कि वो सेम डेटा पैकेट स्ट्रक्चर को ट्रांसमिट कर सकें, रिसीव कर सकें और उसी स्पीड पे कर सकें. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें UART कम्युनिकेशन की,
तो वायर वाइज अगर देखें तो ये I2C जैसा ही है, क्योंकि वहां पे भी 2 वायर्स था, यहाँ पे भी 2 वायर्स हैं। ऑल्दो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एसपीआई में 4 वायर्स यूज हो रहे थे, यहाँ पे 2 वायर्स यूज हो रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कहीं ज्यादा है एसपीआई और I2C से। इट इज अबाउट 1,15,200 watts, and usually while transmitting and receiving the data we are using a baud rate of 9,600. Naturally, UART is not using clock signals, so they are in of asynchronous nature. And here the data is transferred serially. Number of masters and numbers of slave used here are 1 at 1. Means it is a very, you can say it's a very small system of communication, and it cannot be used for the larger embedded system where the number of microcontrollers are more than one and more than one device has to be connected at the receiving end. Then naturally UARTs are not feasible or not very good to use there because of their limitation. तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पे जो मेजर कंसर्न एरिया हमको दिखता है वो दिखता है नंबर ऑफ मास्टर्स एंड स्लेव्स में। मास्टर्स और स्लेव का जो नंबर है वो रिस्ट्रिक्ट करता है यूएआरटी कम्युनिकेशन प्रोसीजर को। वो ये बताता है कि बहुत ज्यादा या अगर एक से भी ज्यादा माइक्रो कंट्रोलर्स यूज हो रहे हैं आइदर ट्रांसमिटिंग एंड पे या रिसीविंग एंड पे, अगर हमको डिवाइसेस ज्यादा कनेक्टेड हैं तो यूएआरटी जो है वो फिजिबल नहीं है वहां के लिए। हमें किसी और प्रोटोकॉल, हमें किसी और कम्युनिकेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इनके काम करने के तरीके पे कि हाउ यूएआरटी कम्युनिकेशन टेक प्लेस। The UART that is going to transmit data receives the data from a data bus. तो UART जो ट्रांसमिटिंग एंड पे है वो डेटा रिसीव करता है डेटा बस के थ्रू। वो डेटा बस किसी प्रोसेसर की हो सकती है, किसी माइक्रो कंट्रोलर की हो सकती है, इट में बी कि डेटा किसी मेमोरी से आ रहा हो, ये भी हो सकता है। द डेटा बस is used to send data to the UART by another device like a CPU. CPU or from the memory or from the microcontroller. तो ये जो डेटा है, ये डेटा किसी CPU से आ सकता है, किसी मेमोरी से आ सकता है, किसी माइक्रो कंट्रोलर से आ सकता है, and that data is received by the transmitting UART. Now the important thing here is कि जो डेटा आ रहा है वो डेटा किस फॉर्म में है। तो जो डेटा आ रहा है वो डेटा पैरेलल फॉर्म में है। तो हमें पहले उस पैरेलल फॉर्म में जो डेटा है उसको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि यूएआरटी को, ट्रांसमिटिंग यूएआरटी को, तो वो उस पैरेलल डेटा को पहले सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो फर्स्ट टास्क यू कैन से दैट द फर्स्ट टास्क ऑफ एनी ट्रांसमिटिंग यूएआरटी इज टू change the data form from parallel to the serial. After the transmitting UART gets the parallel data from the data bus, it adds a start bit, a parity bit and a stop bit. तो जो दूसरा काम है वो काम है कि जब
डेटा सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया पैरेलल फॉर्म से, तो यूएआरटी अब उसमें 3 बिट इंट्रोड्यूस करता है, 3 बिट ऐड करता है। कौन कौन सी 3 बिट? स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट और एक स्टॉप बिट, और एक तरह का डेटा पैकेट फॉर्म करता है। अब ये जो डेटा पैकेट फॉर्म हुआ, इस डेटा पैकेट को सीरियली सेंड किया जाएगा बिट बाय बिट फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग पिन, और ये रिसीविंग एंड पे रिसीवर उसको रिसीव करेगा। The receiving UART reads the data packet bit by bit at its receiving pin. अब receiving UART जो है वो उस डेटा पैकेट को बिट बाय बिट रिसीविंग पिन पे कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। The receiving UART then converts the data back into parallel form. अब जो डेटा आया हुआ है वो डेटा पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट होगा रिसीविंग यूएआरटी के द्वारा, और उसमें से ना सिर्फ वो पैरेलल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसमें से स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट और स्टॉप बिट को हटाना भी होगा। तो स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट और स्टॉप बिट को हटाएंगे, और फिर जो वो फाइनल डेटा होगा उस डेटा को रिसीविंग एंड पे जो भी डिवाइस को सेंड करना है, रिसीविंग यूएआरटी उसको सेंड करेगा। तो ये जो डेटा है वो पैरेलल फॉर्म में डेटा बस के थ्रू रिसीविंग एंड पे उस पर्टिकुलर डिवाइस को सेंड किया जाएगा। तो ये एक ब्रीफ वर्किंग है यूएआरटी की, कि हाउ अ यूएआरटी वर्क्स। डिटेल हम लोग इसका अब देखते हैं कि कैसे काम होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि UART1 डेटा बस जो कनेक्टेड है UART को, वो आप देख रहे हैं तो पैरेलल लाइंस कनेक्टेड है, बिट 0, बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7. So this is using a 8 line which is connected to a UART number 1, and now UART1 has to convert this parallel data which is coming parallelly by the data bus into serial form. तो UART1 उसको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, उसमें तीन बिट्स और ऐड करेगा, एक स्टार्ट बिट, स्टॉप बिट और एक पैरिटी बिट। एक डेटा पैकेट बनाने के बाद UART नंबर 1 उसको ट्रांसमिट पिन से रिसीविंग पिन पे UART2 को सेंड करेगा, और UART नंबर 2 जो है उसको रिसीव करने के बाद अगेन 3 जो बिट्स जिसको ऐड ऑन हुई थी UART1 द्वारा उसको फिल्टर आउट करेगा, डेटा को सीरियली से पैरेलली फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एंड देन he sends it to the receiving device. UART के डेटा फ्रेम की बात करें, या मैसेज पैकेट की बात करें, या कंप्लीट पैकेट का जो फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का होगा, अगर उसकी बात करें तो वो किस तरह का दिखता है, वो इस डायग्राम में, इस स्लाइड में क्लियर है। कि UART transmitted data is organized into packets form. Each packet contains one start bit, data bits of from 5 to 9 bits. डिपेंड करेगा वो UART कितने चैनल का है, उसके पे डिपेंड करता है कि कितने बिट का डेटा बस से लिया जा सकता है। एंड देन ऑप्शनल पैरिटी बिट, और इसके अलावा एक या दो स्टॉप बिट भी रहेंगे इसमें। तो अगर देखा जाए टोटल इसका फॉर्मेशन देखा जाए तो जो दिखता है हमें वो ये दिखता है, ये जो पैकेट है इसमें एक स्टार्ट बिट है, 5 से 9 जो है वो डेटा बिट्स है, डेटा फ्रेम जिसको कह रहे हैं हम। ऑप्शनल है कि हम पैरिटी बिट यूज करें या ना करें, अगर यूज कर रहे हैं तो एक पैरिटी बिट यूज कर रहे हैं, और नॉर्मली एक या दो स्टॉप बिट यूज की जाती है UART के लिए। तो अगर इसका पूरा पैकेट देखें तो पूरा पैकेट का जो कंप्लीट साइज बनता है वो
करीब 12 बिट्स का बनता है। अगर मैं मैक्सिमम 9 डेटा बिट्स की बात कर रहा हूं तो 1 स्टार्ट बिट प्लस 9 डेटा बिट्स इट इज 10, देन 1 पैरिटी बिट is added to this makes 11, and when if we add one stop bit then it is of 12 bit nature, and if we are using two stop bit then the total size is of 13 bit. So either the data packet is of 12 bit or it is of 13 bit packet for the UARTs. Now the next thing is, what is the role of start bit? स्टार्ट बिट का रोल क्या है? यूएआरटी के ट्रांसमिशन में स्टार्ट बिट का रोल क्या होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूएआरटी के स्टार्ट बिट का रोल पता करना, क्योंकि हम यूएआरटीज में क्लॉक सिग्नल नहीं यूज कर रहे, तो सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा? तो उस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए यूएआरटी ने जिस चीज को यूज किया, जिस टेक्निक को यूज किया, वो एक सिंगल बिट का ट्रांसमिशन करके किया, जिसका नाम दिया इन्होंने स्टार्ट बिट का। The UART data transmission line is normally held at a high voltage level when it is not transmitting data. UART की जो डेटा ट्रांसमिशन लाइन है वो नॉर्मली हाई वोल्टेज लेवल पे रखी जाती है अगर वो डेटा ट्रांसमिटिंग का काम नहीं कर रही है। तो डेटा ट्रांसमिशन को इनिशियलाइज करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ डेटा को, ट्रांसमिटिंग यूएआरटी ट्रांसमिशन लाइन को हाई से लो एक क्लॉक साइकिल के लिए करता है। यानी एक क्लॉक साइकिल के लिए जो डेटा लाइन है उसको फ्रॉम हाई वोल्टेज लेवल टू लो वोल्टेज लेवल लाया जाता है। जब ये सिग्नल रिसीव होता है यूएआरटी पे, रिसीविंग यूएआरटी पे, तो वो डिटेक्ट करता है इस चेंज को फ्रॉम हाई टू लो वोल्टेज ट्रांजिशन को एक क्लॉक पल्स के लिए या एक क्लॉक साइकिल के लिए। इस बात से यूएआरटी, जो रिसीविंग यूएआरटी है, उसको पता लग जाता है कि नाउ देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ डेटा ट्रांसमिशन फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग यूएआरटी। अब वो डेटा रीड करना स्टार्ट करता है। अब वो जो भी डेटा आएगा, नाउ द रिसीविंग यूएआरटी इज प्रिपेयर टू रिसीव दैट डेटा। और ये जो डेटा आएगा, ये डेटा दोनों के बॉड रेट को मैच करते हुए आना चाहिए। इस बात का ख्याल दोनों ही पक्ष रखते हैं, यानी कि ट्रांसमिटिंग एंड भी और रिसीविंग एंड भी। एंड मोर देन दैट, जो एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनर है वो इसको पहले से ही कॉन्फ़िगर करके रखता है। तो स्टार्ट बिट का रोल यहाँ पे इनिशियलाइज करने का है, इनिशिएट करने का है प्रोसेस को। डेटा फ्रेम की बात करें कि डेटा फ्रेम की विड्थ कितनी होती है, काम किस में आता है, कैसे इसके जो विड्थ है वो कैसे वेरी करती है। तो डेटा फ्रेम कंटेन्स द एक्चुअल डेटा विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ये वो फ्रेम है, ये वो डेटा है जो एक्चुअली ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीविंग एंड को भेजा जाना था। यानी किसी ट्रांसमिटिंग डिवाइस ने इसको भेजा था रिसीविंग एंड पे, और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 5 से 9 बिट की हो सकती है अगर पैरिटी बिट यूज करते हैं। तो अगर पैरिटी बिट यूज नहीं करते तो डेटा की मैक्सिमम लेंथ जो है डेटा फ्रेम की वो 8 बिट की हो सकती है। ज्यादातर केस में द डेटा इज सेंड विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्स्ट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप I2C से, तो आपको याद होगा कि I2C के केस में ट्रांसमिटिंग एंड से जो डेटा सेंड किया जा रहा था उसमें MSB पहले सेंड की गई थी। यहाँ पे MSB सेंड नहीं होती। यहाँ पे जो बिट सेंड होती है सबसे पहले वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सेंड करने के बाद बाकी की जो बिट्स हैं डेटा की वो सेंड की जाती है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ पैरिटी इन यूएआरटी डेटा फ्रेम या डेटा पैकेट कह लें कि पैरिटी का रोल क्या होगा, पैरिटी किस काम में आएगी। So here the parity describes either the evenness or the oddness of a number. Means कि ये यहाँ पे
ये चीज बताने के काम में आती है कि जो नंबर है, जो नंबर भेजा गया एज अ डेटा, उसमें इवन नंबर ऑफ वंस थे या ऑड नंबर ऑफ वंस थे, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसीविंग यूएआरटी ये सिग्नल करता है कि क्या डेटा चेंज हो गया ट्रांसमिशन में या सेम डेटा रिसीव हुआ। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे इसको एग्जामिन करते हैं, कैसे चेक करते हैं। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन डेटा, और ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उस लाइन के आसपास जिसके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, मिसमैच बॉड रेट्स हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर है, तो इन तीनों ही केसेस में देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डेटा मिसमैच हो जाए, या जो डेटा सेंड किया गया है वो डेटा रिसीव ना होकर के कोई और डेटा रिसीव हो जाए। आफ्टर द रिसीविंग यूआरटी रीड्स द डेटा फ्रेम, एक बार जब डेटा रीड हो गया यूआरटी द्वारा, इट काउंट्स द नंबर ऑफ बिट्स विद अ वैल्यू ऑफ 1। तो वो फिर चेक करता है कि कितने बिट्स में 1 है और कितनी बिट में 0 है। फिर वो ये चेक करता है कि इज द टोटल इज इवन और ऑड। अगर इवन पैरिटी चेक या इवन पैरिटी यूज की गई है, then the number of ones in the data frame should total be a even number। तो जो नंबर ऑफ वंस होने चाहिए डेटा फ्रेम में वो ऐड करने के बाद इवन नंबर में आने चाहिए। अगर ऑड पैरिटी यूज हुई है तो जब रिसीविंग एंड पे नंबर ऑफ वंस काउंट होंगे तो वो ऑड होने चाहिए। दोनों ही चूंकि इस पैरिटी ट्रांसमिशन को समझ रहे हैं, तो इस कंडीशन में फ्री ऑफ एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसमिटिंग यूएआरटी भी को भी पता है कि इवन पैरिटी यूज हो रही है, ऑड पैरिटी यूज हो रही है, रिसीविंग को भी पता है, और बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस द एश्योरेंस कैन बी मेड बाय द रिसीविंग यूएआरटी। अगर इफ द पैरिटी बिट इज 0 एंड द टोटल इज ऑड, पैरिटी बिट 0 है और टोटल अगर ऑड है, या पैरिटी बिट 1 है और टोटल अगर इवन लिया गया है, तो यूआरटी को तुरंत पता लग जाता है कि डेटा फ्रेम चेंज हुआ है। क्योंकि पैरिटी बिट अगर 0 है इट मींस कि इवन पैरिटी यूज हुई थी, तो ऑड नंबर ऑफ वंस नहीं आने चाहिए। या दूसरे केस में अगर कहें कि इवन पैरिटी चेक प्रोसीजर अगर अडॉप्ट किया गया था, तो नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से यूएआरटी चेक कर सकता है कि जो डेटा फ्रेम है कहीं वो वैरी तो नहीं हुआ, कहीं वो चेंज तो नहीं हुआ, कहीं कोई डेटा लॉस तो नहीं हुआ। और इस तरह से यहाँ पे पैरिटी का रोल क्लियर होता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पैरिटी। तो यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ पैरिटी इन यूएआरटी कम्युनिकेशन, और व्हाट इज द रोल ऑफ स्टार्ट बिट इन यूएआरटी कम्युनिकेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो जो हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ स्टॉप बिट। स्टॉप बिट को क्यों यूज करते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, द स्टॉप बिट एज द नेम सजेस्ट मार्क्स द एंड ऑफ द डेटा पैकेट। डेटा पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं, अब वो ट्रांसमिट हो चुके, ट्रांसमिशन को स्टॉप करना है, रोकना है, तो हम इसका यूज करते हैं। नॉर्मली ये 2 बिट लॉन्ग होता है, 2 बिट्स लॉन्ग, बट ऑफन ओनली 1 बिट इज यूज। ज्यादातर केस में 1 बिट ही यूज होती है, पर कभी कभार 2 बिट का भी स्टॉप बिट्स यूज कर लिया जाता है। तो ट्रांसमिशन को एंड करने के लिए यूएआरटी जो है वो अपनी डेटा लाइन पे हाई वोल्टेज को आइदर 1 साइकिल या 2 साइकिल के लिए रिटेन रखते हैं, ये बताने के लिए कि नाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी स्टॉप, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इज गोइंग टू बी स्टॉप बाय यूजिंग दीज 2 बिट्स। स्टॉप बिट्स को यूज करके
जो ट्रांसमिशन का काम चल रहा था UART, बोथ द UARTs के बीच में, वो टर्मिनेट किया जाता है। अब अगर बात करें स्टेप्स ऑफ UART ट्रांसमिशन की, तो ये पहला स्टेप है। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं, डेटा बस से जो है वो पैरेलल फॉर्म में डेटा आ रहे हैं, and this parallel coming data is now first of all converted into the serial form by this transmitting UART. अब ट्रांसमिटिंग UART इन पैरेलल डेटा को पहले इसको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा UART ट्रांसमिशन का। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 की अगर बात करें तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पे UARTs जितनी है वो UARTs उनमें 3 बिट को और ऐड ऑन करती है। कौन सी 3 बिट को? स्टार्ट बिट, पैरिटी बिट और स्टॉप बिट। तो बाय एडिंग ऑल दीज 3 बिट्स, जो ट्रांसमिशन होना है वो कंप्लीट एक पैकेज फॉर्म में आ जाता है, और इस पैकेट को ट्रांसमिटिंग UART अब डिलीवर करेगा रिसीविंग UART को। रिसीविंग UART इस डेटा पैकेट को as it is sent at by the UART transmitting UART, it is received by the receiving UART. Then it checks whether the parity is correct or not, whether the data frame is correct or not. If there is any error, then again the data should be sent from the transmitting end, because correct data is not received from the by the receiving UART. So the correct form of data should be sent once more. And if the parity, after checking the parity, it is found that the data is correct, then the receiving UART filter out the 3 bits, that is stop, start and parity bits from the data packet, form a data packet, and that data packet is in serial form, so it should be converted into parallel form. And after that, that data is now sent to the receiving device. It may be a controller, it may be a memory structure where the data is stored. So this is the complete transmission process of UART. तो आज हम लोगों ने इतनी बात की कि UART क्या है, UART में ट्रांसमिशन कैसे होता है, UART कितने पिन की होती है, आइडियली ये वर्क किस तरह करती है। तो इन सारी ही चीजों पे हम लोगों ने डिटेल में बात की। तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले प्रोटोकॉल की बात करेंगे जिसमें USBs हैं। उसमें देखेंगे कि USB कैसे काम करती है, कैसे उनमें ट्रांसमिशन होता है, कैसे उनके थ्रू कम्युनिकेशन होता है, whether they are fast enough or more faster than these protocols which we have studied so far, that is SPI, I2C and UART. So in detail we are going to discuss about the USBs and CAN bus protocols in the next lecture. Thank you.